program of Government of India. It comes under the National Digital Mission 2017 program, where the Government of India wants to connect all the hospitals and all the medical health records and everything of the individual. They plan to have like you have a smart card where you'll have all the data in that, like all your OPDs, all your laboratory reports, all your diagnostic reports and everything will be. You go to any of the hospitals across the country and everything, you carry all your records into that. So if you see, the Government of India has given for six states this flagship program, and in that one of the is Arunachal Pradesh, where we are trying to roll out the HMS in all the states. So 226 locations what we are planning at now. Later on in the next stage we may add up another 100 locations. By this what we are planning to do is that even to at the PHC and CHC level where you don't have internet also, we try to provide some satellite broadband or leased line or any other connect those remote centers with not only with the TRIMS Medical College. We are even planning to connect anybody from the remote center also. They can connect to AIIMS Delhi or any other AIIMS center also. So in next 6 months or 7 months, you will be able to see the particular future where a patient from the remote village who have to travel such a long distance to come to at least for TRIMS or at least in Itanagar or they go to Guwahati, they can have the initial level of diagnosis and everything, whatever is required. And whatever treatment is required and everything, like the doctor can write at the remote area, like in Delhi also, if it writes the prescription and everything, the prescription comes to the patient digitally, and it will again get connected to the generic medicines or whatever the medicines are there. So the medicines also are issued at the health center area. So this is the main program. We are trying, yeah. So it sounds really nice, like digitally, prescriptions are being sent. But then we cannot deny with the fact that the internet connectivity is pathetic out there. There are VSAT. I mean, certain satellites set up in a particular area. How are you going to tackle that problem? So we have understanding with CDAC. CDAC has come up with an offline application also in that. So whatever the data and everything is collected and everything on that again gets synchronized with our cloud servers and everything. And this whatever the offline or the online applications are there, these are of very small kilobytes or anything which you can connect and everything. So the technology has changed now. If you see in another 6 months or another 7 months, you can start getting satellite broadband, which is even to 30% of the cost of the leased line what you have now. So if you see in the next 6 months or 1 year, the connectivity problem and everything will come down, and even to the state government also is increasing its connectivity and everything, and even to the remote locations through their SWAN. सर रिकॉर्ड आप बोला कि रिकॉर्ड रख सकता है, रिकॉर्ड रखने का कहाँ तक सिक्योरिटी है, क्योंकि कभी-कभार टेक्नोलॉजी चीज होता है कि करप्ट हो जाता है या कुछ वायरस लग जाता है, तो इस सिस्टम में आप कैसे रिकवर करेंगे? See this records whatever is collected and everything is with the CDAC setup. So it is in the cloud, and CDAC maintains event and backup system for that. So it's not only stored in one data location. They have other DR locations. So these are regularly updated. So in any time you won't be losing any of the data. So see the as per the National Digital Mission, each patient will be having a unique ID. So now they have started even to in some of the states, and I think in next 6 months even to our state also will be having the unique ID. How we have the Aadhaar, it will be almost linked with the Aadhaar and everything, and you will be getting a unique ID of that. Now if you see even to the Aarogyasri app and everything also, that has some unique and everything. So those is the other applications which has already been developed by this Government of India. So we will try to integrate with that. हाँ, मैं बताता हूँ सर। हिंदी चलेगा? अरुणाचल हिंदी सीखा है मैं थोड़ा थोड़ा। अरुणाचल में हिंदी अच्छा ज़्यादा चलता है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ की जनता को बताएं जो अरुणाचल में रहते हैं। यहाँ की जो जनता है वो 18 लाख की जनता है, और 18 लाख की जनता असम से 500 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा बड़े एरिया में 18 लाख की जनता रहती है। और तो आप समझ लीजिए कि असम में
जो है वो सड़क बनाना आसान है, अरुणाचल में सड़क बनाना मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं कि वो हम तक नहीं पहुंच सकते तो हमको उनके तक पहुंचना पड़ेगा। तो हम उनके तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी दूरियों को ख़त्म कर रही है। आपने कोविड-19 में देखा, अब सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होने जा रही है। तो कोविड-19 आने के भी 4 साल 5 साल पहले हमने एक हेल्थ ATM मशीन की कल्पना की थी IIT बॉम्बे के अंदर में, और उसको हमने मूर्त रूप दिया और कई सारे जगहों पर और गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया। अरुणाचल में पहली बार ये NHM के अंदर आया है, और बेसिकली ये इंडिया में पहली बार NHM ने हमारे हेल्थ ATM को यहाँ पे लाया। तो हेल्थ ATM की 4-5 खास जो खासियतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है कि आपका एक बेसिक कल्चर होता है हेल्थ चेकअप का, जो आप जनरली नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ पर क्या कल्चर है कि हम गए हॉस्पिटल में, हाँ सर थोड़ा शांत रहिए। हाँ, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पर्ची हमें मिलता है, वो पर्ची हम खो देते हैं। 200 रुपये हमने खर्च किए, कोई बीमारी नहीं निकला, तो पता लगा यार ये तो बेकार हो गया। तो हमने सोचा कि हमारे पास तो कल्चर ही नहीं है ना हेल्थ चेकअप का, बेसिक हेल्थ और प्रिवेंटिव हेल्थ का तो कल्चर नहीं है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, उससे ओवरकम कैसे करें। क्या होता है, जैसे आप प्री डायबिटिक रहते हैं, आपको BP की डिजीज़ रहती है और वो आप प्री लेवल में है, तो आपको पता ही नहीं है। आप जब एक्सट्रीम लेवल में चले जाते हैं तब आपको पता चलता है, फिर आप बीमार हो चुके होते हैं, फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो शुरुआत में ही आपको कैसे पता लग जाए कि ये बीमारी होने वाली है और हम इसके प्रोन जाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए, प्लस डिजिटलाइजेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 2-3 सालों से कोशिश कर रही है, मगर 7 साल पहले हम लोगों ने कल्पना की थी कि हमको हेल्थ डेटा का डिजिटलाइजेशन करना है। तो हमने उस मशीन में डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ चेकअप सिस्टम को भी इंस्टॉल किया था, और हम सारे डेटा को उसमें डिजिटलाइज कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड था। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि एक हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का या किसी भी स्टेट का, वो कैपिटल में होता है या बड़े शहर में होता है। हम रिमोट में नहीं जा पा रहे हैं ना, जैसे बामिंग जैसे एरिया में नहीं जा पाएंगे, तवांग जैसे एरिया में नहीं जा पाएंगे। तो थ्रिम्स के डॉक्टर जो है, मान लीजिए डॉक्टर प्रतिम है आपके, डॉक्टर बसर हैं, डॉक्टर राजा डोडम है, डॉक्टर राजा रतन है, अब ये लोग तवांग में कैसे बात करेंगे? ठीक है, वो तो उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, प्लस उनके पास कोई डेटा नहीं है कि भाई इस पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है। तो एक बेसिक हेल्थ चेकअप हो जाए, उसका आपको वाइटल्स दिख जाए, और उसके वाइटल्स पर थ्रिम्स के डॉक्टर तवांग में, बोमडीला में, जो भी आपका रिमोट एरिया है, चांगलांग में, थिरप में, रोइंग में, वहाँ से एक पेशेंट उसको देख सकता है, और यहाँ पर थ्रिम्स में बैठा हुआ डॉक्टर उसको आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। और इसमें जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं वो आपका FDA अप्रूव्ड है और CE सर्टिफाइड है। तो FDA अप्रूव्ड और CE सर्टिफाइड डिवाइस का ये मतलब होता है कि आप इसको USA में बेच सकते हैं और आप इसको यूरोप में भी बेच सकते हैं। तो ये सभी सर्टिफाइड डिवाइसेस को इंटीग्रेट करके, डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम को इंटीग्रेट करके, हमने इस सिस्टम को यहाँ पर अरुणाचल में लॉन्च करने की कोशिश की है। तो लोगों को मैं चाहता हूँ कि लोग ये जानें और उस मशीन तक आएँ, उसको चेक करें, लाभान्वित हों। आप लोगों को दूर दूर तक बताएं कि आपके गांव से इतने नज़दीक पर ये हेल्थ चेकअप सिस्टम है, और इस हेल्थ चेकअप सिस्टम से आप थ्रिम्स के डॉक्टर से कनेक्ट होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो डिजिटलाइजेशन होगा चेकअप, तो इसमें लाइक जो यूजुअली हमारे यहाँ पे जो बहुत ही नया है ये चीज़, हाँ। तो इसमें बहुत लोगों को ऐसे होगा कि तकलीफ होगा, किस तरह से मैनेज करेगा इसको। अब मतलब आप लोग असिस्टेंट के लिए किसी को रख रहे हैं ना ऐसे ही? देखिए एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वी हैव समथिंग अराउंड 180 पीपल whom will be recruiting for managing, and ये लोग 5 साल तक डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे in rolling out the HMS. So this also was been considered that there are a lot of people who can't go for the digitalization, they can't learn the digitalization properly. So trained people are there, and you have almost 180 people across the state who will help in rolling out this particular program. Basically, you know about 3 P's, है ना, PPP, public private participation. तो government of India and any state government is trying to bring some private company and to associate with department so that it can be implemented well. तो अब केवल सरकारी चीज़ें नहीं रही है, तो हम लोग भी अब आए हैं। जैसे मैं कोई सरकारी अफसर के हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी से आया हूँ और मैं गवर्नमेंट के साथ में मिल के काम करूँगा। तो जो हमारा एक्सपर्टाइज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम आएगा, और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है, जो वेल एक्सपीरियंसड है, जो हमको गाइड कर सकते हैं, कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना,
कहीं तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये दोनों का पार्टनरशिप में जनता का भला होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, तो सरकार भी हमारी जो है वो काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन हो रही है और अच्छा काम करने की कोशिश में सबको मिला के काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का इंजीनियर है तो यही डिज़ाइन करेगा, नहीं, हम प्राइवेट से भी हायर करके कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो जनता को होता है। तो दिस इज़ फॉर पीपल। अभी तक पूरा स्टेट में कितना जगह इंस्टॉलेशन हो गया आपका ये मशीन? सर अभी शुरू हुआ है। हाँ, हम लोग का यहाँ आप लोग ये अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, कैसे यहाँ में नया है, अरुणाचल में फर्स्ट टाइम है, आप लोग कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग का माने टारगेट इज़ वेरी मच क्लियर। वी आर पूरा हिंदुस्तान में 6 स्टेट में ये प्रोग्राम को के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया है, और आई थिंक वी आर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दिस। हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे आप लोग ने रिसेंटली असम का स्पीकर आया था अरुणाचल में, उन्होंने मीडिया में ये ब्रीफिंग करके गया कि हम यहाँ का ई विधान को देखने आया हूँ, हम सीखने आया है। और वहाँ मेघालय से भी आया, यही बोला। तो हम लोग को, आप लोग को तो अच्छा लगा होगा। ये नहीं कि हम लोग अरुणाचल एजुकेशन में सबसे पीछे है और हर चीज़ में पीछे होगा, वो बात नहीं है। काम कराने वाला एक टीम चाहिए। हम लोग का जो मेन मकसद जो है कि इंडिया में हम लोग फर्स्ट टाइम इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सब जगह में हो रहा है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन आई थिंक वी आर द फर्स्ट टुडे। तो ये हम लोग अभी शुरुआत कर रहा है। और हम लोग का मकसद जो अभी ये बताया है, तो पूरा हेल्थ सिस्टम को डिजिटलाइज करके, जैसे कि स्पेशली हम लोग, क्योंकि हमारा यहाँ बहुत स्केटर पॉपुलेशन है, तो ये हम लोग का अभी इनिशियली हम लोग 180 मिशन लगाएंगे अलग अलग जगह में। ये जो है इसमें अभी आप लोग 1-2 डेमोन्स्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, करा देंगे अभी। तो ये सर, ये करने से हम लोग का हेल्थ सिस्टम जो है, हम लोग मेन मुद्दा, हम लोग का मेन टारगेट जो है, हम आप लोग फॉर इन्फॉर्मेशन, हम ट्रीम्स का कॉन्ट्रैक्टर भी है, और ये हम लोग का B4B जो हम लोग का असेंबली को ई विधान बनाने वाला, जो जहाँ असम लोग आए, जो अरुणाचल का काफ़ी हम लोग का नाम ऊँचा हुआ, उन लोग है सक्सेसफुली कराया। तो हम लोग, हमारा जो हम लोग उन लोग से फर्स्ट शुरुआत में हम लोग यही बात बोला है कि हम ऐसा कोई सिस्टम है क्या जहाँ में हम ट्रीम्स में ही बैठ के तवांग में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका कंट्रोल यहाँ हो, यहाँ को डॉक्टर लोग दे करके सुपरवाइज करें। तो बोला एकदम बिल्कुल है, कर सकता है। तो हम लोग ने वही चीज़ को गवर्नमेंट को अप्रोच करके ये सिस्टम आया है। तो ये एक बार इम्प्लीमेंट मतलब हो जाने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे असेंबली में जो हुआ है वो चीज़ ये भी हम लोग उस लेवल में लाने के लिए कोशिश करेंगे, और सबका सपोर्ट चाहिए इसमें। बहुत अच्छा लगा था। तो साहब आप यहाँ हाजिर में है, केंगेज कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाहरलगुन ट्रिम्स का जैसे बिल्डिंग बना रहा है। ट्रिम्स जो है बहुत सुंदर एक हॉस्पिटल मल्टी कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, आप वहाँ बना रहे हैं। सर एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, लोगों को भी थोड़ा जानकारी दे सकते हैं आप? ब्लॉक 2 जो देने के लिए हम लोग बोला था वो ऑलमोस्ट 100% रेडी है। उसका मैंने टेक ओवर करने के लिए है। 1-2 लिफ्ट उसका फिटिंग बच्चा कर रहा है, बिना लिफ्ट से लेगा बोल के बात हुआ था। लेकिन अभी जो एम्स से कुछ विजिटिंग टीम आया था, एंड उन लोग आके काफ़ी तारीफ़ किया। उन लोगों ने बोला कि ये तो एम्स का बराबर आप लोग का हॉस्पिटल है, और एम्स में जो कमी है, एम्स में ये ऐसा था इसलिए इस प्रॉब्लम हुआ, हम लोग उधर में तो अभी चल रहा है, वो चीज़ को फिर हम लोग को वो सेम गलती को नहीं होना है बोल के काफ़ी फिर उसमें मॉडिफिकेशन मतलब सजेस्ट करके गया है। तो हम लोग को तो बिल्डिंग खत्म हो गया, वी आर रेडी टू हैंड ओवर, फरवरी को हैंड ओवर करना था, बट उसका चलते अभी फिर उसको मॉडिफिकेशन करने में काफ़ी मतलब वॉल को अंदर का इंटरनल और रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन उसका अलग अलग करने के लिए इवन हम लोगों ने मॉड्यूलर ओटी को भी अंदर में से एक अलग नया चीज़ उन लोगों ने सजेस्ट करके किया, विच इज़ नॉट इंडिया। उन लोग बोला कि उन लोग वहाँ में हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ हम लोग का नज़र में ऑब्जर्वेशन आया कि ये होने से इतना अच्छा होना था। तो वो चीज़ आपका यहाँ कमी ना हो जाए कि वो भी नंबर 1 नाहरलगुन से शुरू करो बोल के उन लोग ये सजेस्ट करके गया। तो हम लोग उसको बहुत खुशी है। तो हम लोग अकॉर्डिंगली वी आर डिजाइनिंग इट। जहाँ डॉक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, उन लोगों के काम ऑलरेडी असाइन होके होता है, तो ये किस तरह फंक्शन करेंगे? लाइक उन लोगों के एक पर्टिकुलर डेज होगा ना? हाँ, इनका क्या है कि ट्रिम्स में जो डॉक्टर हैं, तो हमारा यहाँ पर आए थे, खम्पा सर आए थे जो मिशन डायरेक्टर हैं NHM के MD,
तो उनसे भी बात हुई कि तो थ्रिम्स में जो भी आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, जो सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो वो अपना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देंगे। तो हमारे स्क्रीन पर एक पैनल आपको दिखेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स कि 25 डॉक्टर्स हैं, 30 डॉक्टर्स हैं। तो लेट से कि आपको मेडिसिन के डॉक्टर चाहिए, तो मेडिसिन का 3 डॉक्टर उसमें आपको दिखेगा, उनका टाइम दिखेगा कि 12 से 2 ये अवेलेबल रहेंगे, 4 से 6 ये अवेलेबल रहेंगे। तो इनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप क्या है कि उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।